So the topic name is polarization. Consider holding a long string that held horizontally. एक string consider करनी है जो आपने horizontally pick करके रखी है, and other end which is assumed to be a fixed. सामने window पे बांध दिया है एक end को. And if we move end of string up and down in a periodic manner, we will be generate a wave which is propagating in a which direction? X direction. Such a wave could be described by the following equation. Up and down, up and down, up and down. ऐसा propagating wave मिलेगा आपको. Propagating, that means those wave which are in a motion. Okay, displacement उनका y में हो रहा है, propagation उनका x में हो रहा है. आया समझ में? आया ना? देखो, this is the wave pattern at the t equals to 0 time and this is the wave pattern at the t equals to t plus delta t time. कुछ ओके सही है, सही है, क्योंकि वो 0 लिया था ना, एंड दैट्स व्हाई t इक्वल्स टू डेल्टा t टाइम सही है. 0 से कितना शिफ्टिंग हुआ टाइम है? डेल्टा t. ओके, तो फिगर ए जो है दैट इज द कर्व्स प्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्ट्रिंग एट द t इक्वल्स टू 0 एंड t इक्वल्स टू डेल्टा t रिस्पेक्टिवली व्हेन द साइनोसॉइडल वेव्स इज प्रोपोगेटिंग इन द विच डायरेक्शन. बट ये जो सेकंड फिगर है दैट इज रिप्रेजेंट्स द represents the time variation of displacement at x equals to displacement आपने फिक्स कर दिया. उस वक्त वहां पे क्या वेरिएशन आ रहा है वो एक्सप्लेन किया जा रहा है. साइनोसॉइडली वेव्स इज प्रोपोगेटिंग इन विच डायरेक्शन? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन. ओके चलो छोड़ो, ये तो फिगर है, जब जरूरत होगी तब वापस आएंगे. अभी हम इक्वेशंस की बात कर रहे थे कि वो जो वेव्स हमने अभी बात की जिसको हम जनरेट कर रहे हैं और वो प्रोपोगेट हो रहे हैं एक्स डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है y डायरेक्शन में, तो उनके लिए जो इक्वेशन है वो कैसे आएगा? तो y इज द डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन एंड इट इज चेंजिंग विद द पोजीशन एंड टाइम अकॉर्डिंग टू a sin kx minus omega t. It's a sinusoidal function, sin kx minus omega t. Omega is the angular frequency, k is the wave constant, x is the direction of propagation and t is the time. सारी बातें क्लियर हो गई? तो a is amplitude, ओमेगा जिसको हम क्या बोल सकते हैं? 2 पाई f. वंश थोड़ा पीछे जाके दरवाजा ओपन कर लो. और वो बॉक्स, हाँ वो बॉक्स है ना, उसको नहीं नीचे से अच्छे से पकड़ के, वो गिरे ना, बाहर रखते, वो गिरे ना अंदर. बाहर साइड में रखते, बाकी टेबल पे रखते चलेगा. थोड़ा सा ओपन रखना. Okay. So A is nothing but what? Amplitude. Omega is nothing but what? Angular frequency of the wave, है ना, respectively. And further, this K is the wave constant, and that is represented by as K equals to 2 pi by lambda. So from that lambda equals to, okay, that represents the wavelength associated with the wave. We had discussed the propagation of such wave in the chapter number 15 of textbook 11, जो नहीं किया है हमने, but हम मान लेंगे कि waves are propagated in the x direction and displacement is perpendicular to the x direction, that is y. Since the displacement यानी that is along the y direction is right angle यानी perpendicular to the direction of propagation, we have what known as the which wave? Transverse wave. Also, since the displacement is in a y direction, it is often referred as the y polarized wave. जो ट्रांसवर्स वेव होते हैं उन्हीं में पोलराइजेशन होता है. ओके, नॉन ट्रांसवर्स वेव यानी कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स में पोलराइजेशन नहीं होता है. और यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि दिस वेव इज द वाई पोलराइज्ड वेव, क्योंकि उसमें डिस्प्लेसमेंट जो है वो सिर्फ वाई डायरेक्शन में हो रहा है, प्लस वाई माइनस वाई, प्लस वाई माइनस वाई में ही हो रहा है. आया समझ में? Since each point on the string moves in a straight line, we have also referred as linearly polarized wave. And further, the string is always remain confined to the which plane? जब string को हम up and down कर रहे हैं तो x and y उसी प्लेन में है, उसके अलावा हम ऐसे तो कर नहीं है, हम ऐसे या ऐसे नहीं झुला रहे हैं, हम सिर्फ अप डाउन कर रहे हैं. तो ये y में डिस्प्लेसमेंट हुआ, वेव प्रोपोगेट हो रहा है अलोंग द लेंथ, मतलब कि x डायरेक्शन. So these waves are confined in the plane of xy. आया समझ में?
and therefore they again referred as plane polarized wave. In a similar manner, we can consider the variation of the string in the vibration of the string in the which plane? XZ plane, generating Z polarized wave whose displacement will be given by Z of xt equals to a sin kx minus omega t. It should be mentioned that linearly polarized waves described by equations are all transverse wave. ओके, जो भी हमने की है वो सारे के सारे कौन से वेव्स हैं? ट्रांसवर्स वेव है। क्यों? क्योंकि यहाँ से पता चल जाएगा। आगे y एंड t था तो यहाँ पे x था, यहाँ पे z था, है ना, तो यहाँ पे x, वहां पे y x था, यहाँ पे z x है, तो बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड तब हम उसको क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्स वेव. In a displacement of each point of string is always at the which angle? Right angle to the what? Direction of propagation of the waves, and that's why they are considered as a transverse wave. Finally, the plane vibrations of the string is changed randomly in a very short time interval of time. Then we have what known as unpolarized wave. अभी हमने एक में xy प्लेन देखा, दूसरे में हमने xz देखा. अब वो टाइम टू टाइम xy xz xy xz xy xz xy xz चेंज होता जाता है. प्रोपोगेशन डायरेक्शन फिक्स है x, बट जो पोलराइजेशन प्लेन है, मतलब कि माय मिस्टेक, जो वाइब्रेशन डायरेक्शन है वो कभी y है, कभी z है, कभी y है, कभी वो z है. आया समझ में? वो रैंडमली चेंज हो रही है. तब हमें जो वेव मिलेगा दैट इज अनपोलराइज्ड वेव. थस फॉर अनपोलराइज्ड वेव द डिस्प्लेसमेंट विल बी रैंडमली चेंजिंग विद टाइम, दो it will always be perpendicular to the direction of propagation. Okay, तो direction displacement will be randomly changing, मतलब the direction of vibration is randomly changing, but direction of propagation remain same. आया समझ में? Light waves are transverse wave in a, तो up to now हमने waves की एक information ली, that is about the transverse wave. अब हम actually light पे वापस आते हैं. Light कौन सा wave है? Transverse. The electric field associated with a propagating light wave is always at the right angle to the direction of propagation of wave. Okay, ध्यान देना. Electric field associated with wave propagating while propagating a light wave always at the right angle to the direction of propagation of wave. चैप्टर नंबर 8 में आपको पढ़ना है, बाकी है. ओके, तो चैप्टर नंबर 8 में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में पढ़ेंगे, इन विच वी विल लर्न कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट, या वाइब्रेशन इज द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इन अ मैग्नीट्यूड ओनली. एक्चुअली वाइब्रेशन फॉर फील्ड कैसे होता है? तो द मैग्नीट्यूड गोइंग टू बी चेंज साइनोसॉइडली एंड बोथ आर इन a perpendicular direction. Suppose E is in a y then B in a z direction, and propagation is again perpendicular to both vibration, both field vibration, that is x. So all are perpendicular mutually. But जो विजन इफेक्ट होता है लाइट का वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होता है. किसकी वजह से? And that's why we skip the magnetic field discussion over here, and that's why we strictly follow the electric field direction. और this electric field direction is perpendicular to the propagation direction. किसको perpendicular होगा? Propagation, and that's why we consider light wave as a which wave? Transverse wave. This can be easily demonstrated using the simple Polaroid. Okay, Polaroid होता है, Polaroid glasses आते हैं. ओके, अभी सन ग्लासेस लेने जाओगे ना आप काइट फेस्टिवल के लिए? करने वाले हो काइट फेस्टिवल? अच्छा है, सही है. 2000 रुपये पापा से लेके पॉकेट में रख देने के. हाँ, आ गया? आईवेयर में आ गया. जो सन ग्लासेस होते हैं ना वो पोलोराइडर होते हैं, बट लिसन केयरफुली. पोलोराइडर में चेकिंग के लिए आपको एक कार्ड दिया जाता है. जब आप देखोगे उसको नॉर्मली तो कुछ चीजें आपको नहीं दिखेगी, बट व्हेन यू वियर इट एंड देखोगे तो वो दिखने लगेगी, क्योंकि वो जो कुछ वो इमेज इस तरह से बनाया होता है कि उसमें से जो रिफ्लेक्शन होता है वो पर्टिकुलर डायरेक्शंस में ही होता है. अनपोलराइज्ड लाइट से वो दिखती प्लेन पोलराइज्ड लाइट से दिखेगी. तो इस तरह से वो पोलोराइडर ग्लास हम यूज करते हैं. क्यों? क्योंकि वो उसके ऊपर जो भी इंसिडेंट होता है उसका 50% लाइट इंटेंसिटी को कम कर देता है. दैट्स वाई आंखों को सनलाइट से बचाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? पोलोराइडर. तो पोलोराइडर से हमें पता चल जाएगा कि गिवन लाइट इज पोलोराइड और नॉट. यू मस्ट हैव सीन, मैं आगे भी एक्सप्लेन करूंगा हाउ वी विल एबल टू नो दैट गिवन लाइट इज पोलोराइड और
not. So you must have been seen the plastic like sheets which called polarizers. वैसे अभी मैंने आपको बताया कि नहीं? सारी प्लास्टिक शीट पोलराइजर्स नहीं होगी, ना सारे ग्लास पोलराइजर्स होंगे. आप पर्टिकुलरली आस्क करोगे, मांगोगे तो हाई बजट रेंज में आपको पोलराइजर मिलेगा. ओके, प्लास्टिक लाइक शीट जस्ट फॉर अपीयरेंस आपको बोला गया है, बट हर एक प्लास्टिक शीट और हर एक ग्लास आपका पोलराइजर नहीं है. आया समझ में? जैसे आप स्पेक्स पहन रहे हो वो पोलराइजर नहीं है. गॉट इट? चलो. और जो भी आप सन ग्लासेस लेके आते हो डुप्लीकेट भी हो सकते हैं, पोलराइजर के नाम पे चुना है, इसलिए मैंने बोला ना कि आपको एक कार्ड दिया जाएगा, उस कार्ड में आपको देखना है. ओके, चलो. अ पोलराइजर कंसिस्ट अ लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल. एक महीने पहले बोल के रखा है, जाने शिवानी. पोलराइजर का आइडिया क्लियर हुआ? Okay, a polarizer consists long chain of molecule which is aligned in a particular direction, and the electric vector associated with the propagating light wave along this direction of aligned molecule get absorbed. Okay, thus if an unpolarized light waves is incident on such a polarizer, then the light wave will get linearly polarized with electric vector oscillating along direction perpendicular to the aligned molecules, and this is known as path axis of polarizer. Suppose मेरे पास ऐसा कोई लाइट है जो ईच एंड एवरी डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है, क्योंकि लाइट तो जो है वो अनपोलराइज्ड है और प्रोपोगेशन डायरेक्शन ऐसे परपेंडिकुलर है. ऐसे प्लान हो गया जिसमें ईच एंड एवरी डायरेक्शन में vibration possible है और propagation direction is perpendicular to this plane. Okay, so when it is passes through the polarizer, suppose this is my path axis, which axis? तो what happen कि यही कंपोनेंट ऐसे वर्टिकल कंपोनेंट ही बाहर आएंगे, बाकी सारे क्या हो जाएंगे? एब्सॉर्ब. मानो कि आपने कोई ऐसा लिया, ए वाला कंपोनेंट उठा लिया, बराबर, तो इसको हम दो एक्सिस में डिवाइड कर सकते हैं. मतलब इसका एक कंपोनेंट ऐसा वर्टिकल भी होगा और इसका एक दूसरा कंपोनेंट कैसा होगा? हॉरिजॉन्टल, क्योंकि इट इज अल्टीमेटली वेक्टर फॉर्म. विच फॉर्म? वेक्टर फॉर्म. विच फॉर्म? वेक्टर. एंड वेक्टर कैन बी रिजॉल्व इनटू टू डायरेक्शन. वेक्टर कैन बी रिजॉल्व इनटू टू डायरेक्शन. कितने के डायरेक्शन में हम रिजॉल्व कर सकते हैं? दो. तो एक हो गया इस एक्सिस के डायरेक्शन में, पास एक्सिस के डायरेक्शन में, और दूसरा जो कंपोनेंट बचेगा वो हॉरिजॉन्टल यानी परपेंडिकुलर टू द पास एक्सिस. परपेंडिकुलर टू द पास एक्सिस मतलब अलाइंड एक्सिस, वो एब्सॉर्ब हो जाएगा और जो पैरेलल है वो बाहर निकल जाएगा. दिस हैपेंस विद ईच एंड एवरी वन. सपोज आपने ए वाला लिया है तो इसका ऐसा है, तो वो भी दो परपेंडिकुलर एक्सिस में ऐसे कंपोनेंट में कन्वर्ट हो जाएगा. जैसे हम फोर्स को रिजॉल्व करते थे ना दो डायरेक्शन में, वैसे फील्ड जो है वो भी रिजॉल्व हो जाएगा इन अ टू डायरेक्शन. हाउ मच डायरेक्शन? टू. एंड व्हेन इट इज पास थ्रू द टर्मिनल प्लेट, इसको टर्मिनल प्लेट भी बोलते हैं या पोलराइजर भी बोलते हैं, देन सिर्फ पास एक्सिस के पैरेलल कंपोनेंट बाहर आएंगे. अब यहां से जो लाइट ट्रैवल कर रही है
उसमें सिर्फ एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेशन होने वाले परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, सॉरी परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स है। आया समझ में? एंड दैट्स व्हाई इट इज अ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। बोलो को डाउट? कंफर्म? Okay, the electric vector along the direction, electric vector along the, कहाँ थे? Mistake. Along the direction of aligned molecules get absorbed, and if unpolarized light waves incident on such a polarizer, then light wave will get linearly polarized with the electric vector oscillating along direction perpendicular to aligned molecule, which is known as pass axis. Thus, if the light from the ordinary source like a sodium lamp passes through a polarizer sheet P1, it is observed that intensity reduced by half. Without any proof, you have to believe it, accept it. और बहुत MCQ भी, ओके, 50% इंटेंसिटी हो जाएगी पहले पोलराइडर में से पास होने के बाद। तो सेकेंड में 25, उसके बाद नेवर। सेकंड रखने के बाद ड्रामेटिक इफेक्ट चालू होती है। सेकंड के बाद 25 नहीं होगी, वो डिपेंड करेगा कि दोनों का पास एक्सिस जो है वो दोनों के बीच का एंगल कितना है। आया समझ में? उसको हम पढ़ने वाले। क्लियर? तो ऐसा जरूरी नहीं है कि पहले में से निकलने के बाद 50 हुआ और 50 के बाद अगर हमने सेकंड रखा हुआ है तो 25 देगा। इट डिपेंड्स कि दोनों जो हमने प्लेट सीट यूज की है वो दोनों की पास एक्सिस की या तो फिर अलाइंड एक्सिस की अल्टीमेटली एंगल कितनी है। तो हम पास एक्सिस पे ज्यादा फोकस करेंगे क्योंकि पास एक्सिस में से जो कंपोनेंट निकलने वाले वो पैरेलल होंगे। तो वो पास एक्सिस की जो एंगल है वो कितनी होती है उस पर डिपेंड रहता है। बट पहली सेट के पहले तो सोर्स ही होता है और कुछ तो होता नहीं है, एंड दैट्स व्हाई इट इज डायरेक्टली रिड्यूस टू द हाफ। बोलो को डाउट? अगर मैं P1 को रोटेट करूं, किसको रोटेट करूं? P1 को, तो कोई इफेक्ट होने वाला नहीं है क्योंकि जो भी लाइट आ रही है वो अनपोलराइज्ड लाइट है। तो उसके सारे कंपोनेंट्स जो है जब हम रिजोल्व करेंगे तो 50% पास एक्सिस में मिलेंगे और 50% परपेंडिकुलर टू द पास एक्सिस मिलेंगे। लॉजिकली डील करें तो 50% एब्जॉर्ब हो गए, 50% क्या हो गए? पास। तो जो 50% पास हुए उसकी इंटेंसिटी आपको मिल रही है। आया समझ में? ओके। रोटेटिंग द P1 हैज अ नो इफेक्ट ऑन द ट्रांसमिटेड बीम एंड ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी रिमेन कांस्टेंट। नाउ लेट द आइडेंटिकल पीस पोलराइज्ड P2 बी प्लेस्ड बिफोर P1, है ना? अब अच्छे से ध्यान देना, ऐसा बोला है आइडेंटिकल पीस ऑफ पोलराइडर P2 बी प्लेस्ड बिफोर P1। पहले लाइट था, लाइट के बाद P1 था, P1 के बाद ऑब्जर्वेशन करना था। बट अब P1 के आगे किसको रख दिया? P2, मतलब आगे एक पोलराइडर है और P1 बिकम सेकंड पोलराइडर। आया समझ में? लाइट पहले P2 पे आएगी और फिर P1 पे। तो अगर मैं P2 को रोटेट करूं ना तो P2 के बाद कोई चेंज होने वाला, सिंगल पोलराइडर जैसा एक्ट करेगा। हाँ, बट अब P2 के बाद जो P1 पे लाइट आ रही है जो एक्चुअली में सेकंड पोलराइडर है, बोले P1 नाम दिया उसको हमने, उसको रोटेट करने से जो अल्टीमेटली, ध्यान दे भाई, जो अल्टीमेटली बाहर निकलने वाला है लाइट, उसमें क्या इफेक्ट आएगा वो हमें देखना। वो लाइट सोर्स बीच में P2 फिर P1 फिर यहाँ पे स्क्रीन, जहां पे क्या इफेक्ट होने वाला है वो देखने वाले। बात क्लियर हुआ? ओके। एज एक्सपेक्टेड द लाइट फ्रॉम द लैम्प इज रिड्यूस इन अ इंटेंसिटी ऑन पासिंग थ्रू P2 अलोन। अगर मैं P1 निकाल तो सिर्फ P2 बचेगा लाइट एंड स्क्रीन, सोर्स एंड स्क्रीन के बीच में। तो P2 से जब निकलेगा तो 50% रिड्यूस होने ही वाला है या ना? बट नाउ अगर हम P1 ऐड कर दें तो भी थोड़ा रिड्यूस तो होगा, बट दैट डिपेंड्स कि P1 कैसा है। अगर आप क्या मानते हो, इफ बोथ पास एक्सिस आर पैरेलल, P2 एंड P1 का, तो कितनी इंटेंसिटी मिलेगी यहाँ पे? सेम। P2 में से जो निकला उसका जो पास एक्सिस है वो P1 की भी पास एक्सिस है, तो P1 कुछ नहीं करेगा, वो सारी लाइट को क्या करने देगा? जाने देगा। जिस पर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे P2 रख दिया था, सपोज दिस इज द सोर्स, ओके, और ये P2 है ही, और यहाँ पे भी हमने एक ऐसा ही टर्मिनल प्लेट यूज किया है, यानी पोलराइडर यूज किया है जिसका पास एक्सिस एक्जैक्टली इसको पैरेलल है। तो ये सारे कंपोनेंट तो ऐसे ही जा रहे हैं ना पास एक्सिस वाले, तो वो सारे निकल जाएंगे, मतलब कि कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। फर्क तब पड़ेगा जब मैं इसको रोटेट कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? रोटेट। आया समझ में? ओके। As accepted, light from the lamp is reduced intensity on passing through the P2 alone. But now rotating the P1 has dramatic effect on a light coming from P2. In one position, the intensity transmitted by P2 followed by P1 and nearly zero.
P2 में से जो लाइट आ रही है, P1 को जब रोटेट करते हैं तो एक टाइम पे वो इंटेंसिटी 0 होगी। वो कब? तो जो मैंने आपको पहला टर्मिनल प्लेट ऐसे बना के दिया था, उसमें से ऐसे लाइट निकल रही थी पैरेलल, उसके पैरेलल एक्सिस को, हाँ या ना? अब मैं जो दूसरी टर्मिनल प्लेट है वो ऐसे बना देता हूँ और उसकी जो एक्सिस है वो क्या बना देता हूँ, परपेंडिकुलर, मतलब इसको और इसको परपेंडिकुलर रख लेता हूँ, हॉरिजॉन्टल। तो अब ये तो सारे पैरेलल जा रहे हैं, परपेंडिकुलर टू दिस एक्सिस जा रहे हैं, तो सारे परपेंडिकुलर है तो क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएंगे। अब यहाँ पे बाहर कोई लाइट निकलेगी नहीं। तो when P2 and P1 axis perpendicular to each other, तब P1 में से कोई लाइट बाहर नहीं आएगी, and that is intensity nearly 0, and we turn 90 degree from this position, P1 transmit nearly a, ओके देखो अगर मैं यहां से 90 करूं रोटेट तो वापस से वर्टिकल आ जाएगा, तो फुल इंटेंसिटी पास होने देगा जो P में से बाहर, P2 में से बाहर निकला था पहले पोलराइडर में। आया समझ में? आया ना? सेम चीज यहाँ पे दिखाई गई है कि देखो ए P1 में से निकलने के बाद पैरेलल हो गया, इसको भी सीधा ही रखा तो सारी की सारी इंटेंसिटी निकल जाएगी। बट इसको जब मैंने ऐसे रखा और इसका आधा कर दिया तो यहाँ पे कोई इंटेंसिटी निकलेगी नहीं, 0 हो जाएगा। बट ये जस्ट उसकी एक्सिस के लिए बताया गया। बोलो कोई डाउट? कंफर्म? यू कैन सी ओवर हियर कि यहाँ पे कुछ इंटेंसिटी मिल रही है, लेकिन ऐसे कर दे तो ये डार्क जनरेट हो जाता है। डार्क दैट मीन्स नो इंटेंसिटी. So the above experiment can be easily understood by assuming that the light passing through the polarizer P2 gets polarized along the path axis of P2, and if the path axis of P2 makes the angle with theta with the path axis of P1, then my mistake. Then when polarized beam passes through the polarizer P2 and the component E cos theta along the path axis of P2 will be passed through P2, and thus as rotate the polarizer P1 or P2, intensity will be vary as I equals to I0 cos square theta. देखो ये P2 है, यहाँ पे सोर्स है, ये P2 है, ये P1 है, एंड देन स्क्रीन है। तो आप P2 को रोटेट करो तो भी सेम ड्रामेटिक ही एक्शन होगी, या P1 को करो तो भी होगी। क्यों? क्योंकि दोनों ये ऐसे है तो दोनों की एक्सिस पैरेलल है। मैं इसको रोटेट कर रहा हूं तो भी दोनों के एक्सिस का एंगल चेंज हो रहा है, इसको रोटेट कर रहा हूं तो भी दोनों के एक्सिस का एंगल चेंज हो रहा है। आया समझ में? अगर मानो कि दोनों की एक्सिस के बीच का एंगल कितना है, थीटा, तो I0 cos square थीटा जितनी इंटेंसिटी चेंज होगी, where I0 is the intensity of polarized, unpolarized light, polarizer, polarized light. This polarized light incident on the second polarizer, then you get the intensity I. यहाँ पे आपको I मिलेगी as a I0 cos square theta. तो this I0 is not that I0 which you transmitted. अनपोलराइज्ड लाइट का इंटेंसिटी नहीं है, उसका आधा हो गया था ना, दैट इज I0 पहले पोलराइजर में से, और वो आधा हुआ I0 इधर कैसे वेरी करेगा, तो दैट इज I0 cos square theta. बात क्लियर? दिस लॉ इज नोन एज Marl's law. Above discussion show that intensity coming out single polarizer is half of incident intensity. By putting the second polarization, Polaroid, then intensity can be further controlled 50% to, आपने पहले 100% intensity incident की, it is 50 over here. When it is passed through second polarizer, you will क्या बोलते हैं, कंट्रोल दैट इंटेंसिटी फ्रॉम 0 to 50 ओनली। 100 का पहले पोलराइजर ने ऑलरेडी 50 बना चुका है, आप पैरेलल रखो तो 50 to 50 बाहर निकलेगी। आप जब रोटेट करोगे तो इंटेंसिटी कम होगी, ये आ गया तो 0, फिर वापस कम होगी, सॉरी बढ़ेगी, ओके, फिर पैरेलल हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगी, फिर वापस रोटेट होके दूसरी साइड आ जाएगा तो 0 हो जाएगा। इस तरह से चलता रहेगा। तो एडजस्टिंग द एंगल बिटवीन द पास एक्सिस ऑफ टू पोलराइजर, तो इंटेंसिटी को कंट्रोल करने के लिए हम पोलराइजर यूज कर सकते हैं। इंटेंसिटी को कंट्रोल करने की जरूरत आएगी आपको 11th चैप्टर में, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में एक्सपेरिमेंट करना हो तो। गॉट इट? पोलराइजर कैन बी यूज्ड टू कंट्रोल द इंटेंसिटी। आ गया? दूसरा, तो हम सनग्लासेस में एक ही पोलराइजर यूज करते हैं, जनरली ऐसा हमारा फीलिंग होता है, बट क्या पता वो ग्लास जो बना है वो डिफरेंट डिफरेंट लेयर में से बना हो, बराबर। बट अल्टीमेटली व्हाट इज द नीड ऑफ सनग्लास? यस, इंटेंसिटी क्या करना है, कम। आया समझ में? नाउ पता है आपको, जो कार होती है ना, कार के ग्लासेस पे फिल्म लगाई जाती है, दैट इज द ब्लैक फिल्म, वो पोलराइडल फिल्म होती है जो इंटेंसिटी को क्या कर देती है, कम। अब अगर आपको उसमें भी कम इंटेंसिटी चाहिए एक बार फिल्म लगाने के बाद, तो सेकंड टाइम फिल्म लगानी है। बट आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा आगे पीछे लगाना है,
इसका रीजन क्या होगा? दो पोलराइडर के एक्सिस पैरेलल नहीं होने चाहिए। आया समझ में? और वो शायद जो वर्किंग पर्सन होता है उसको पता होता है कि भाई उसको वो पूरा लो नहीं पता होता है, लेकिन उसको पता होता है कि पहली ऐसे लगाई, देन दूसरी थोड़ी आगे पीछे शिफ्ट करके या उल्टी लगाओ तो काम हो जाएगा। उल्टी लगाने से भी उतना काम नहीं होगा, परपेंडिकुलर पे ही लगाना पड़ेगा। आया समझ में? तो वो आपको ध्यान रखना है। शायद उसको इतना टेक्निकल नॉलेज ना हो, वो आज तक हमें जो नॉलेज था वैसा ही नॉलेज है उसके पास। एक लगाओ, दूसरा लगाओ, तीसरा लगाओ, झाड़ा बनाओ कम करो। बट हम इतना थिक ना करने के बावजूद भी उस इंटेंसिटी को कम कर सकते हैं इफ वी विल वेरी द पोलोराइडर एंगल, मतलब एंगल्स बिटवीन टू पोलोराइडर्स। है ना? तो ये चीज आप ध्यान रख सकते हो। तो सन ग्लासेस हो गया, विंडो पेंस हो गया, उसमें हम यूज कर सकते हैं। पोलोराइडर्स आर यूज्ड ऑल्सो यूज्ड इन अ फोटोग्राफिक कैमरा एंड 3D मूवी कैमरास। क्या पता वीआईपी लोगों के पोलोराइडर होते हैं क्लास, और इसमें से बने होते हैं। पता है वीआईपी कार्स होती है, आप देख नहीं सकते उसके अंदर क्या है, ओके कैसा है, तो वो ग्लासेस ऐसे ही बने हुए। बोलो कोई डाउट है या ना? ओके।
में वैसे हम परफेक्टली तो सब कुछ फॉलो नहीं कर पाएंगे, लेकिन जितना कर पाए उतना अच्छा है। क्वेश्चन ऐसा है, डिस्कस द इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट व्हेन पोलराइज्ड स्लिट इज रोटेटेड बिटवीन टू क्रॉस्ड पोलराइडर्स। दो क्रॉस्ड पोलराइडर है, यानी दो परपेंडिकुलर है, उसके बीच में एक पोलराइडर है जिसको हमें क्या करना है, रोटेट करना है। ओके, सो लेट I0 बी द इंटेंसिटी ऑफ पोलराइज्ड लाइट आफ्टर पासिंग थ्रू। जो पहले हमने इंसिडेंट किया था, सपोज दैट इज I, देन दिस I0 इज I/2। ओके, बट हम पोलराइज लाइट की ही, क्योंकि पहले जो किया था वो अनपोलराइज लाइट था, जैसे वो पोलराइडर में से पास हुआ वो क्या हो गया, पोलराइज। तो पहली जो पोलराइज लाइट मिली उसकी इंटेंसिटी को हमने क्या मान लिया, I0, है ना। तो सिंपल सा, एक P1 है, एक P2 है और एक P3 है। यहां से हमने कोई लाइट इंसिडेंट की आफ्टर P1, हाँ, आफ्टर पासिंग थ्रू P1 एंड आफ्टर P1, वो कौन सी इंटेंसिटी से बाहर निकला, I0। I0 इज द इंसिडेंट इंटेंसिटी फॉर P2। आया समझ में। Then the intensity of the light after passing through second polarizer P2 will be, so after passing through P2, this will be according to the Mal's law, I0 cos square theta, if theta is the angle between P1 and P2। बट अब समझना अच्छे से, P1 का एक्सिस एंड P3 का एक्सिस एक दूसरे को क्रॉस था। क्रॉस मतलब 90 समझना है। P1 एंड P3 क्या था, 90। देखो अच्छे से समझना, क्या लिखा है, इफ पोलराइडर सीट इज रोटेटेड बिटवीन टू क्रॉस पोलराइडर, तो P1 P3 इज द टू क्रॉस पोलराइडर, उसके बिटवीन में P2 रख के हमें क्या करना है, रोटेट करना है। तो मानो कि P2 किसी इंस्टेंट पे ऐसे आ गया, जो कितने एंगल पे है, थीटा, तो अब इनके बीच में कितना होगा, 90 माइनस थीटा, है ना। तो अब आगे वापस माल्स लॉ लगेगा। माल्स लॉ क्या बोल रहा है कि जो भी इंसिडेंट कर रहे हो उसका cos स्क्वायर थीटा हो जाता है। तो ए इंसिडेंट होगा P3 पे, क्या है वो, I0 cos स्क्वायर थीटा, वो इंसिडेंट होगा, तो उसका भी क्या होगा, cos स्क्वायर थीटा। लेकिन उस वक्त P2 एंड P3 के बीच में एंगल कितना है, तो cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा, एंड cos 90 माइनस थीटा बिकम sin स्क्वायर थीटा, तो sin थीटा sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। लेटर ऑन फिर सिंप्लीफिकेशन दिखते। अभी समझ में आ गया इतना, कंफर्म ना। ओके, तो दैट I0 cos स्क्वायर थीटा, फिर जैसे मैंने बताया, theta is the angle between P1 and P2. Since P1 P3 are cos, between the path axis of P2 and P3 will be pi/2 minus theta, and that's why emerging light P3 will be have a intensity I equals to I0 cos square theta cos square pi/2 minus theta, जैसे मैंने बताया। This cos square pi/2 minus theta become, उसके बाद हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4I0 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय क्या लिखेंगे, 4। ओके, 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 से डिवाइड किया, दैट इज इक्वल्स टू I0/4। अब इसको 4 को मैं 2 बोल देता हूँ, साइन थीटा एंड कॉस थीटा लिख लेता हूँ, साइन थीटा कॉस थीटा, और पूरे का क्या कर देता हूँ, स्क्वायर, तो दैट बिकम I0/4, दिस इज साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा, उसका स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर 2 थीटा। आया समझ में। ओके, अब आपको क्या पूछा गया, हाँ, डिस्कस द इंटेंसिटी, तो ये तो हो ही गया इंटेंसिटी। अब आप बताओगे कि मैक्सिमम कब होगा, तो जब मैक्सिमम क्या होता है, जब ये 1 होता है, तो दैट मीन्स साइन 2 थीटा बिकम 1, एंड दैट्स व्हाई साइन 2 थीटा बिकम साइन 90। ओके, therefore 2 theta become, therefore theta become 45 is pi/4, that is maximum when theta is, मतलब P1 P3 के बीच में एक्जैक्टली P2 रहेगा, तब मैक्सिमम जाएगा। आया समझ में, डाउट, कंफर्म। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग। पोलराइजेशन तो सीखना है, लेकिन थ्रू द स्कैटरिंग। द लाइट फ्रॉम द क्लियर ब्लू पोर्शन ऑफ द स्काई shows a rise and fall of the intensity when viewed through the polarizer which is rotated. Okay, this is nothing but sunlight which has the change its direction having been scattered on a encountering the molecules of the earth atmosphere। वो इसलिए चेंज हो रहा है बिकॉज एटमोस्फियर में मॉलिक्यूल्स जो उसके अंदर पार्ट्स ले रहे हैं स्कैटरिंग में, उसकी वजह से। तो एज सोन इन द फिगर, इंसिडेंट सनलाइट इज, ये फिगर में जैसे आप देखोगे तो जो इंसिडेंट लाइट है वो अनपोलराइज्ड है। आया समझ में। जब वो किसी मॉलिक्यूल्स को टकराएगी और वहां से ट्रांसमिट होगी, तो मे बी दैट मॉलिक्यूल इज ट्रांसमिट ऑफ वन टाइप ऑफ ऑसिलेशंस। दिस इज नथिंग बट, वेव इज नथिंग बट
ऑसिलेशंस। तो यहाँ पे लाइट के ऑसिलेशन ईच एंड एवरी डायरेक्शन में हो रहे थे, एंड दैट्स व्हाई इट इज ट्रीटेड एज अनपोलराइज्ड लाइट व्हेन इट इज इंसिडेंट ऑन एनी मॉलिक्यूल, और वो मॉलिक्यूल अब नेक्स्ट पोलराइजेशन नेक्स्ट वाइब्रेशन जनरेट करेगा। तो उसने परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कौन से वाले ऑसिलेशंस जनरेट किए? सिर्फ प्लेन को परपेंडिकुलर, जो इन आउट हो रहा है प्लेन को परपेंडिकुलर, जो डॉट से रिप्रेजेंट किए, उसी को ही 90 एंगल पे थ्रो किया, एंड दैट्स व्हाई दिस बिकम पोलराइडल लाइट, क्योंकि यहाँ पे एक ही डायरेक्शन में क्या है? ऑसिलेशन हो रहा है। बात क्लियर हुई? यस, डेफिनेटली वी कैन डू इट, वी कैन से इट। ओके, हम इस पार्टिकल को पोलराइडर बोल सकते हैं। नहीं, ऐसा फिक्स नहीं, कुछ कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। तो आपको एवरेज इफेक्ट मिलेगा, समझ में? आपको कौन सा इफेक्ट मिलेगा? एवरेज। बात क्लियर ना? बट अभी हम सिंगल पार्टिकल से समझ रहे हैं, तो स्कैटरिंग में भी पोलराइजेशन हो जाता है, हमारा मतलब ये है समझने का। बट ऐसे स्कैटरिंग वापस मिलके अनपोलराइज्ड लाइट वापस हो जाएगी। आया समझ में? Okay. Figure shows the incident sunlight is unpolarized. The dot stands for the polarization perpendicular to the plane of figure, and the double arrow shows the polarization in the plane of figure. There is a no phase relations between the two unpolarized light. Under this influence is the electric field of incident wave, the electron in the molecules. पहले तो how that molecule able to generate electromagnetic wave, क्योंकि when electromagnetic wave incident on the molecule, molecules के अंदर क्या presence होगा? Electron. That electron absorb the energy from that wave and then lose that energy in the form of electromagnetic wave. तो वो एक क्या जरिया बन जाएगा, पहले उसको एब्जॉर्ब करेगा, देन एनवायरमेंट में क्या करेगा? एमिट करेगा, ट्रांसमिट करेगा। आया समझ में? तो देखो, अंडर द इन्फ्लुएंसेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंसिडेंट वेव, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द मॉलिक्यूल एक्वायर द कंपोनेंट्स ऑफ द मोशन इन अ विच डायरेक्शन? बोथ। But we drawn the observer looking at the which degree? 90 degree of the sun. Then clearly charges accelerated parallel to the double arrow do not radiate energy towards this. जब ऑब्जर्वर सन से एकदम 90 डिग्री पे होगा, सनलाइट ऐसे जा रही है और वो नीचे से ऑब्जर्व कर रहा है, तो ये जो नीचे मॉलिक्यूल्स के थ्रू जो नीचे की ओर थ्रो करने वाली लाइट है, स्कैटर होने वाली लाइट है, उसमें प्लेन वाले कंपोनेंट मिसिंग है, सिर्फ परपेंडिकुलर टू द प्लेन वाले कंपोनेंट है, डॉट 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 डॉट। ओके, दिस इज प्रूव्ड, वी हैव टू एक्सेप्ट इट। क्यों ऐसा? हाँ, लॉजिकल रीजन है कि मॉलिक्यूल ने ऐसा किया, मॉलिक्यूल्स के जो इलेक्ट्रॉन थे वो इंटरेक्ट हुए, उसने दोनों कंपोनेंट को एब्जॉर्ब किया था, लेकिन परपेंडिकुलर में सिर्फ वैसे ही कंपोनेंट छोड़े जो प्लेन को परपेंडिकुलर। बात समझ में आई? है ना? ओके। Clearly, charges accelerating parallel to the double arrow do not radiate energy towards the observer, since that acceleration has a no transverse component, and the radiation scattered by the molecule is therefore represented by dots. It is a polarized perpendicular, yes, perpendicular to the plane of figure, and this explains polarization of scattered light from the sky. Sky से perpendicular वाली है ना, तुम्हारे सामने आने वाली लाइट की बात नहीं हो रही है, सन से ऐसे सीधी लाइट जा रही थी उसकी बात हो रही है, और तुम ऐसे देख रहे हो, बोथ शुड बी परपेंडिकुलर, तब स्कैटरिंग आता है। आया समझ में? अब हमारे ऊपर तो सब कुछ आता है, दैट्स व्हाई ऑर्डिनरी लाइट इज नॉट पोलराइज्ड लाइट। बात क्लियर? कंफर्म हुआ? ओके। द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय मॉलिक्यूल्स वाज intensively investigated by the C.V. Raman and his collaborators in the Kolkata in 1920s. Raman was awarded Nobel Prize in Physics, first Indian scientist जिनका नाम नोबेल प्राइज में आया 1930 फॉर हिज वर्क। ऐसे काफी सारे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। वैसे आपने समाज मतलब मिस्टेक सोशल साइंस पढ़ा हुआ है, और उसमें इंडिया के काफी सारे चर्चे एनिशियंट टाइम के पड़े हुए हैं कि हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कैसे आगे थे। ओके, अब बात करते हैं पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग के बाद पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के थ्रू पोलराइजेशन कैसे होता है? सो फिगर शोज द लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ ट्रांसपेरेंट मीडियम से वाटर, लाइक वही फिगर यहाँ पे भी दे दिया गया। दिस इज द रिफ्लेक्शन। ये वाटर है,
यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट। तो देखो यहाँ पे दोनों है डॉट और प्लेन ऑफ फिगर का कंपोनेंट्स, तो बोथ कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट, मतलब अनपोलराइज्ड लाइट। व्हेन इट इज रिफ्लेक्ट इन द सेम मीडियम देन इट बिकम पोलराइज्ड। देखो सिप डॉट आए, बट फॉर दैट कंडीशन इज दैट रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड शुड बी अ परपेंडिकुलर। ये दोनों परपेंडिकुलर हो तभी ये पॉसिबल है। आया समझ में? तब जाके सिर्फ रिफ्लेक्टेड में आपको कौन से कंपोनेंट दिखेंगे, एक ही डायरेक्शन वाले, परपेंडिकुलर ऑफ फिगर वाले। बात क्लियर? रिफ्लेक्टेड में दोनों है तो इट इज स्टिल अनपोलराइज्ड, दिस इज ओनली पोलराइज्ड। बोलो कोई डाउट? कंफर्म? Okay, figure shows a light reflected from a transparent medium, say water, as before. The dots and arrow indicates that both polarization are present in the incident and refracted waves. Refracted waves. We have drawn a situation in which reflected wave travels right angle to the refracted wave. The oscillating electrons in the water produce refracted wave. Okay, when light is incident, when light is what? Incident on the water surface. So water surface पे water molecules हो गए, that water molecule gonna to absorb that energy and then transmit into each and every direction. So some is in the back to the medium and some energy is inside the medium. That inside the medium is considered as a refracted wave या ray. And जो same medium में वापस आया that is a reflected ray. आया समझ में? Okay. The oscillating electrons of the water produce reflected wave and this moves in the two direction, transfers to the radiation from wave in the medium, that is known as refracted wave. The arrows are parallel to the direction of reflected wave. क्यों? क्योंकि उसमें डॉट 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 है तो वो इंडिविजुअल एक दूसरे को क्या है, पैरेलल। मोशन इन दिस डायरेक्शन डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द reflected wave. As a figure shows, reflected light is therefore linearly polarized perpendicular to the plane of figure, which is represented by dots only. This can be checked by looking the reflected light through that analyzer is nothing but polaroid. Polaroid को बीच में रखोगे, इंटेंसिटी जो है वो वही इंटेंसिटी जो है ना, देखो एक लाइट आ रही है, पोलराइजर रखने के बाद दूसरी साइड पे 50% इंटेंसिटी हो जाती है और उसको रोटेट करने से इंटेंसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो दैट लाइट इज अनपोलराइज्ड। एक लाइट आ रही है, एक ही पोलराइजर यूज किया है, दूसरी साइड पे 50% इंटेंसिटी हो गई और मैं वो पोलराइजर को रोटेट कर रहा हूं और कोई भी इंटेंसिटी चेंज नहीं हो रही है, तो दैट इंसिडेंट लाइट इज ओके। तो इधर ही है कि घर जा रहा है? हाँ, तो 10 मिनट में खत्म ही हो रहा है। तो दैट इंसिडेंट लाइट इज अनपोलराइज्ड लाइट। आया समझ में? बट व्हेन वी इंसिडेंट द लाइट एंड अगर मैं इस पोलराइजर को रोटेट करता हूं और इंटेंसिटी 0 से मिनिमम, माय मिस्टेक, 0 से मैक्सिमम से 0, क्योंकि यू आर नॉट नो अबाउट द 100% इंटेंसिटी, 0 से मैक्सिमम से 0 हो रहा है, देन दैट लाइट इज मस्ट बी पोलराइज्ड लाइट। तभी तो इंटेंसिटी एक ही पोलराइजर से वेरी हो गया। बात समझ में आया? तो यू कैन यूज दिस पोलराइजर एज अ analyzer. The transmitted intensity will be 0 when the axis of analyzer is in the plane of, क्योंकि प्लेन परपेंडिकुलर में जा रहे थे, तो अगर एक्सिस प्लेन ऑफ फिगर में आ जाएगी तो 0 हो जाएगा। एंड देन द प्लेन ऑफ फिगर मतलब प्लेन ऑफ इंसिडेंस। So when unpolarized light is incident on a boundary between the two transparent media, reflected light being polarized with the electric vector perpendicular to the plane of incidence, when the refracted and reflected rays make the right angle with each other, and thus we have seen that when reflected wave is perpendicular to the reflected wave is totally polarized wave. Reflected wave totally क्या हो गए? Polarized. The angle of incidence in this case is called Brewster angle. उस टाइम पे जो angle of incident है उसको हम बोलेंगे Brewster angle, represented by IB, and Brewster is the name of scientist जिन्होंने इस इफेक्ट को नोट डाउन किया था। ओके, वी कैन सी दैट IB इज रिलेटेड टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। क्यों? क्योंकि अगेन वापस मैं फिगर में जाता हूं, अगर ये मेरा ब्रिस्टर एंगल है तभी तो ये दोनों परपेंडिकुलर हुए, तो दैट्स IB अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट एंगल इक्वल्स टू रिफ्रैक्टेड एंगल, तो दिस विल बी IB। नाउ दिस IB 90, IB यहाँ से यहाँ 90 और दिस इज द एंगल विच इज रिफ्रैक्टेड एंगल R। रिफ्रैक्टेड रे ने बनाया ना नॉर्मल के साथ, तो R, दैट समेशन ऑफ ऑल दिस थ्री।
IB प्लस पाई बाई टू प्लस आर इक्वल्स टू पाई 180, तो ये पाई उधर, पाई बाई टू उधर चला जाएगा, तो IB प्लस आर बिकम पाई बाई टू एंड देयरफॉर आर बिकम, आया समझ में? अगर मैं यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगा दूं तो ये मेरा मीडियम नंबर 1, दिस इज मीडियम नंबर, तो N1 साइन IB इक्वल्स टू N2 साइन R, देयरफॉर N1 साइन IB इक्वल्स टू N2 साइन R की जगह पे पाई बाई टू माइनस IB, तो N1 साइन IB इक्वल्स टू N2 cos IB, because sin pi by 2 minus IB cos IB, cos IB नीचे जाएगा tan IB, that is equals to N2 upon N1, sin upon cos 10, okay, N1 उधर चला गया, N1 become 1 for the air and that's why N2 is the medium, तो N equals to tan IB, clear हुआ? That is over here. आ गया, स्नेल्स लॉ अप्लाई किया, IB प्लस आर पाई बाई टू कैसे आया, क्लियर हुआ? साइन IB आया, साइन आर को पाई बाई टू माइनस IB कैसे लिखा, और वो कॉस होके 10 हो गया, बात क्लियर ना? तो दैट N इक्वल्स टू 10 IB, N इक्वल्स टू, एंड जो अभी NCERT का एग्जामिनेशन हुआ रिसेंटली 2020 उसमें ये MCQ में आया था, किसमें आया था? Unpolarized light of incident plane glass surface, what should be the angle of incident so that reflected and refracted rays are perpendicular to, अल्टीमेटली वो तभी है परपेंडिकुलर, मतलब पोलराइज हो जाएगा, पोलराइज मतलब ब्रूस्टर्स लॉ अप्लाई होगा, ब्रूस्टर्स लॉ अप्लाई होगा ग्लास के लिए, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.5, तो tan इनवर्स ऑफ 1.5 ढूंढना है, लेकिन उसमें 2020 में कोई डेटा दिया गया, एंड दैट्स व्हाई यू हैव टू रिमेंबर 57 इज आंसर, 1.5 का tan इनवर्स जो है वो कितना होगा 57, अब जब वो की बुक का है तो यू कांट डू एनीथिंग, आप अपोज भी नहीं कर सकते, समझ में आया? तो सिंपल सा है, होप सो कि 2022 में भी वापस रिवाइज हो। ओके, फॉर द सिंप्लिसिटी वी हैव डिस्कस्ड scattering of the light at the 90 degree and the reflection at the which angle? Brewster's angle. This is the special situations 1 to the perpendicular component of electric field is 0. एक direction में electric field के component 0 है reflected ray में, okay? At the other angles both component are present but one is the stronger than the others. Reflected की ही बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? Reflect, जो मीडियम में बैक आ रहा है उसकी बात हो रही है। Okay, there is a no stable phase relationships between two perpendicular component since these are derived from two perpendicular components of unpolarized beam and that's why उसमें कोई phase relation ढूंढने की हमें ट्राई भी नहीं करनी है, ना कोई phase relation है। आया समझ में? इसलिए ना कभी कभी जो वाटर सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर आ रहा है ना वो लाइट को देखने में शांति मिलती है सीधा सनलाइट देखने से, क्योंकि सनलाइट में इंटेंसिटी ज्यादा, अनपोलराइज्ड लाइट व्हेन इट इज इंसिडेंट ऑन द वाटर सरफेस, तो कुछ ऐसे एंगल के पे ऊपर जब इंसिडेंट हुई होगी तो वो 50% इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। आया समझ में? हाँ या ना? तो व्हेन सच अ लाइट्स इज व्यूड थ्रू द रोटेटिंग एनालाइजर वन सी मैक्सिमम मिनिमम इंटेंसिटी, ऑलरेडी आई टॉक, बट नॉट कंप्लीट डार्कनेस, वो इसलिए डार्कनेस कंप्लीट नहीं मिलेगी क्योंकि एंगल ब्रिस्टर ना भी हो, ब्रिस्टर एंगल हो तो यस यू कैन प्रोड्यूस अ डार्कनेस 0, बट ब्रिस्टर एंगल ना हो तो वो कुछ कंपोनेंट क्या हो गए? दोनों कंपोनेंट हो गए, तो कुछ स्ट्रॉन्गर हो गए और कुछ मिनिमम हो गए, तो यू कैन मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी आपको मिलेगी। आया समझ में? तो वो अनपोलराइज से थोड़ा सेपरेट हो गया। अनपोलराइज लाइट को जब पोलराइडर पे इंसिडेंट करते थे सेम इंटेंसिटी 50%, आप थक भी जाओगे इसको रोटेट करते बट चेंज नहीं होगी। यहाँ पे अनपोलराइज होने के बावजूद भी आपको मैक्सिमम मिनिमम मिल रहा है, क्यों? क्योंकि दोनों कंपोनेंट सेम प्रपोर्शंस में नहीं है। बात समझ में आया? ओके, एंड दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ लाइट इज कॉल्ड। Let us try to understand the situations when unpolarized beam of the light is incident at the Brewster's angle on interferences of two media. Only part of light with an electric field vector perpendicular to the plane of incidence will be dot wala structure reflected ray में। Now, by using a good polarizers, if we completely remove the all light with its electric vector perpendicular to the plane of incidence and let this light be incident on the surface of prism at Brewster's angle, you will then observe that no reflection and there will be a total transmission of light. हमने क्या किया? पहले ट्रांसमिशन करवाया ब्रूस्टर्स एंगल पे,
ओके, ब्रिस्टल एंगल्स पे ट्रांसमिशन करवाया, फिर प्रिज्म पे इंसिडेंट किया, ओके, और बीच में पोलोराइडर रख लिया, तो पोलोराइडर ने परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब, और फिर जो भी लाइट बचा वो जाने दिया, तो वो प्रिज्म में से सिर्फ रिफ्लेक्ट हुई, माय मिस्टेक, रिफ्रैक्ट हुई, कोई रिफ्लेक्शन आपको दिखने मिला नहीं। वापस एक बार पढ़ते, यूजिंग द विच पोलोराइडर, good polarizers, if we completely remove all light with the electric vector perpendicular to the plane of incidence and let this light be a incident on the surface of prism. Okay, तो देखो समझना क्या है, जैसे हमने वाटर पे इंसिडेंट किया था वैसे अभी हमें प्रिज्म पे इंसिडेंट करना है, तो एयर एंड अनदर मीडियम आ गया, तो वहां पे भी दो केस बनते, रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्शन, बट हमने बीच में क्या डाल दिया था इंसिडेंट करने से पहले, पोलोराइडर, जिसने क्या किया, प्लेन ऑफ परपेंडिकुलर कंपोनेंट को एब्सॉर्ब कर दिया। तो अब रिफ्लेक्टेड जो प्लेन में रिफ्लेक्टेड वेक्टर मिलने चाहिए थे वो तो हमने क्या कर लिए पहले से, एब्सॉर्ब, तो सिर्फ रिफ्रैक्शन होगा, परफेक्ट रिफ्रैक्शन होगा, कोई रिफ्लेक्शन आएगा नहीं। अब समझ में आया परफेक्ट रिफ्रैक्शन का स्टडी किस तरह किया जाता है ना। चलो ओके, यू विल देन ऑब्जर्व नो रिफ्लेक्शन, ओनली ट्रांसमिशन ऑफ लाइट। Okay, we begin this chapter by pointing out there is some phenomenon which can be explained only by the which theory? Wave theory. In order to develop a proper understanding, we described now how some phenomena like a reflection, refraction, which we studied on the basis of ray optics in chapter, can also be understood on the basis of. Then we described Young's double slit experiment was turning point of study of. उसके बाद हमने डिस्क्राइब किया कुछ एसोसिएटेड पॉइंट्स सच एज, आया समझ में, यहां तक की बातें कंप्लीट हो गई। यहां पे आपको रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स ऑफ लाइट समझ में आया। अब जो नेक्स्ट 11 चैप्टर है वो आपको पार्टिकल नेचर पे वापस ले जाएगा। और सर क्या कर रहे हो आप, इस चैप्टर को स्टार्ट किया था न्यूटन ने, ऑप्टिक्स नाम की बुक लिखी थी, आपने मना कर दिया था भाई पार्टिकल नहीं है, मना किया था कि नहीं किया था, याद आया, फिर भी वापस आइंस्टाइन बोलेगा आप। अब कौन बोलेगा, आइंस्टाइन, नहीं 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 बेटा, समझने में कुछ गलती हो रही है, पार्टिकल नेचर आएगा अब ऐसे। इन शॉर्ट, पर्टिकुलर फिनोमिनन्स को समझने के लिए पर्टिकुलर नेचर इज रिक्वायर्ड, आया समझ में, है ना। ह्यूमन बीइंग को जैसे कंफर्ट मिला वैसा नेचर रखा, आया समझ में। ओके देन सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।